नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मॉलिक्यूल? ओके, व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स with itself or another one. That means suppose hydrogen is combining with hydrogen, then dihydrogen gas created. This is molecule and this is atom, as you know. Okay, hydrogen के साथ साथ compound भी जो होते हैं H2O, these are also molecule. Carbon dioxide molecule, ठीक है, but more than one element combining with each other and creates a molecule. This is a molecule. But what is molecular mass? तो molecular mass is also relative molecular mass, okay, with respect to carbon 12 substance. Molecular mass carbon 12. Suppose आपको molecular mass जानना है तो what is a molecular formula एक होता है. What is molecular formula? First of all, molecular formula is a formula which shows number of atom present in that molecule. Okay, number of atom present. That means H2O is a molecular formula. That means two atoms of hydrogen and one atoms of oxygen combined together. ठीक है, this is molecular formula. तो molecular formula is a formula which shows the number of atom present in that molecule. Okay. Now, what is molecular mass? So molecular mass is a mass compared to carbon 12, that is relative molecular compared to carbon 12 atom present in that molecule. Okay, molecular mass हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन का जितने भी एटम का होगा उतना. तो this is also we have done in the 9th standard previously, but again we will revise some formulas. जैसे H2O. Okay, H2O का what is molecular mass of hydrogen? तो molecular mass of hydrogen is 1. How many atoms are there? 2. So 1 multiplied with 2. Okay, plus number of atoms of oxygen 1 and mass of oxygen is 16. Clear? Mass of oxygen is 16. तो कितना हो जाएगा? 2 plus 16 that is 18U. The molecular mass of water is 18U. U means unified mass. This is the molecular mass. एक और लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2. तो molecular mass of carbon into 1 plus oxygen into 2. Okay, तो कार्बन का molecular mass 12, ऑक्सीजन का molecular mass 16 into 2. This is 32. 12 plus 32 and that is 44U. So molecular mass of carbon dioxide is 44U. Okay, this is the perfect or basic method to find molecular mass. जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एटॉम है, उसको उसके नंबर से मल्टीप्लाई करो एंड दूसरे एटॉम के अंदर ऐड करो. हमेशा ध्यान रखना कि कहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कहां पर हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है, जैसे नंबर ऑफ एटॉम हाइड्रोजन के 2 है तो 2 into हाइड्रोजन करना है और ऑक्सीजन का 1 है तो 1 into ऑक्सीजन करना है. अब ये दोनों को ऐड करना है. ओके, दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द मेथड टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास. एक और चीज आता है मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ द फॉर्मूला मास. व्हाट इज फॉर्मूला मास और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास? तो formula mass. What is formula mass? Suppose I have a molecule like NaCl. This is my molecule. Okay. अब ये molecule के अंदर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ NaCl के अंदर. चलो एक और लेकर आपको ज्यादा समझ में आएगा. Na2CO3. What is this? Baking soda. Okay. Na2CO3 is a baking soda. अगर इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O तो ये अनदर मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल. इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, समझ रहे हो? दिस इज वॉशिंग सोडा एक्चुअली, बट वॉशिंग सोडा का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो बीच में यहाँ पर इनटू है तो दिस इज कैन नॉट बी से अ सिंगल मॉलिक्यूल. तो सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी नहीं होगा.
समझ लो, सपोज जैसे कुछ मैंने लिख दिया कि C12 H15 O11 N2 ऐसा कुछ लिख लिया। Is this any kind of molecule? No, this is not a molecule, but this is formula। ये एक फॉर्मूला तो है, yes or no? तो जिसका मास हम लोग फॉर्मूला से फाइंड करेंगे दैट इज नोन एज फॉर्मूला मास। ये जो है ये फॉर्मूला मास है, और जिसका पर्टिकुलर कोई मॉलिक्यूल होता है उसका होता है मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो जैसे हम लोग फॉर्मूला मास फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला मास के अंदर भी सेम ही है, सोडियम का मास इनटू कार्बन का मास इनटू ऑक्सीजन का मास प्लस 10 H2O का मास जो भी है, दिस इज फॉर्मूला मास एंड दिस इज मॉलिक्यूलर मास। तो माइंड वेल difference between formula mass and molecular mass, actually both are same for the molecule। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल है NaCl is molecule, तो इसका फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम है, समझ रहे हो? इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं होता क्योंकि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास अलग होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, दोनों का अगर कंबाइन करके कोई मास आप लिख रहे हो दैट इज आवर फॉर्मूला मास। Okay, this is the major difference between molecular mass and formula mass. After this we are going to learn is molecular stoichiometry। Okay, molecular stoichiometry। अब what is stoichiometry? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि what is exactly stoichiometry। तो जो नंबर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, नंबर कॉम्बिनेशन दैट मींस के एक मॉलिक्यूल, दो एटॉम, तीन एटॉम, ये सब जो होता है दैट इज स्टोइकियोमेट्री। ओके, रिलेशनशिप विद इटसेल्फ, ठीक है, जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं, जितने भी कुछ बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं, कौन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइंड हो रहे हैं एक दूसरे का साथ, दैट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री इज अ कंफर्म टॉपिक और फर्स्ट टॉपिक ऑफ जेईई सिलेबस। जेईई का जो सिलेबस है, नीट का जो सिलेबस है, उसके सिलेबस का जो अगर आप फर्स्ट टॉपिक चेक करोगे दैट यू विल फाइंड द मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री और यू कैन फाइंड ओनली अ स्टोइकियोमेट्री। ओके, तो ओनली स्टोइकियोमेट्री इज मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री एंड एक क्वेश्चन कंफर्म आता है हमेशा, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके कॉन्सेप्ट समझ के रखना, इसके अंदर के कैलकुलेशन खुद आ जाएंगे।